हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रेस क्लासेज। आज हम 10th क्लास के लिए आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें आज हम चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच डिपेंड ऑन द बोर्ड एग्ज़ाम 2025। तो लाइक दिस वी आर डूइंग चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 and 2 हैज़ बीन डन इन 2 वीडियोज़। थर्ड वीडियोज़ चैप्टर 3 के लिए है। तो आज मैं चैप्टर 3 से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, जो बोर्ड में आते हैं, बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग MCQ में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ओके, and then other 2 marks and 3 marks questions also are there। तो मैं उनको अभी आपके सामने आज इस वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा, उनका सॉल्यूशन भी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो यू सी नाउ आई एम टेलिंग टू यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 फ्रॉम चैप्टर 3 NCERT बुक CBSE। Okay, now what is question 1? My question 1, the line of linear equations. The line of linear equations this and this are intersecting at a point, option B parallel, C coincident, D none of these. So we have to tell here MCQ question which is correct in these options. Now what is about this we know, we know ratio of their coefficients formula, and then we can tell intersecting है या parallel है, none of these है या coincident है। Okay, these line। तो what is required? A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2। तो in the solution direct you will take A1 upon A2 and find B1 upon B2 and then compare and find C1 upon C2। For like this question you check these 3, okay, and then you know the condition for each one option, then which option here correct option you can take। Now A1 upon A2 6 upon 2, you know that first equation A1x plus B1y plus C1 equal to 0, like this। तो A2x plus B2y plus C2 equal 0। तो इन सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू 0 नहीं है तो मेक इक्वल टू 0 बोथ। देन -9 टेक दिस साइड, देन +9 होगा। ओके, देन C2 की वैल्यू +9 होगी। देन 6 upon 2 डायरेक्ट टाइम टेकिंग बिकॉज ऑप्शन क्वेश्चंस आर देयर, no need to the waste of time, and then it is, we can simplify, it is 3 upon 1। okay beta, then now B1 upon B2 -3 upon -1, see here -3 है यहाँ क्वेश्चन से, and this is -1, B2 -1, B1 -3, then solve किया, minus cancel, this also 3 upon 1 and C1 upon C2 also calculate, then this will be 10 upon, and this -9 will shift this side and equal to 0 हो जाएगा, then C2 value is +9, this 10 upon 9। Now you check here, you observe here that these are here equal, A1 upon A2 value equal here B1 upon B2 value। okay, both are equal but third not equal to C1 upon C2। तो observe and write what is there। after that which condition there, we know if A1 upon A2 equal B1 upon B2 and not equal to C1 upon C2, so you know this what parallel line, the line of this linear pair of equation will be parallel line। तो आर parallel line, तो parallel line which option is there? B option। तो B option is correct option। तो we can say this implies option B is correct।
ओके बेटा, डायरेक्ट यू हैव टू पुट, बट आई एम राइटिंग ऑप्शन बी, बी है यहाँ पर, पैरेलल लाइन इज करेक्ट। ओके बेटा, तो लाइक दिस यू कैन डू नाउ, ठीक है बेटा, लाइक दिस यू कैन डू नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, दिस क्वेश्चन नंबर 2, ओके, द लीनियर इक्वेशंस 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y - 12 = 0 are consistent and unique solution, inconsistent and infinite many solution, inconsistent and no solution, consistent and infinite many solution. Which option is correct option? We have to check same thing of ratio of their coefficient. तो A1/A2, this is the standard method to say about this type of MCQ, कि take ratio of the coefficient of the x variable in the both equation and coefficient of y variable in the both equation and the constant term make equal to 0 and take constant term. Okay, then A1/A2 here you can check 4/3 divided by 2, 4/3 divide by 2, divide by 2, ठीक है बेटा, 2 को लिख देंगे 2/1, ओके, देन B1/B2 also we have to find, तो B1 and B2 है 2/3, ओके, and C1/C2 also we have to find, then C1/C2 is here, this take this side and take that side 0, तो -8/-12, okay beta, be careful, then simplify, 4/3 divided by 2 means this will be equal 4/3 divided by 2 means multiply 1/2, 2 3 जा 6, तो 4/6, okay beta, and then this one is 2/3, okay, and last one this also simplify, तो ये कितना बना, माइनस माइनस कैंसिल, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, all are equal you can see because this also 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, it is also 2/3, तो all three are same here 2/3, so we can say which option is correct here, it means all are equal, so we know if A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2, then coincident lines, and we can say that consistent and solution रखते हैं वो, और कितना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट एंड इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हियर। बी ऑप्शन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ठीक है, बट इसके साथ इनकंसिस्टेंट दे दिया, बट वी कांट से इनकंसिस्टेंट बिकॉज हेयर ऑल थ्री इक्वल मीन सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो देन कंसिस्टेंट वी नो, सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ठीक है, क्लियर, नाउ वी कैन डू, ओके, सिमिलरली वी हैव टू डू। हाँ जी, क्वेश्चन 3 इज द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इट मीन्स इन टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल दो ही होते हैं, उनमें एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा है वो कितना बड़ा है स्मॉलर से, 18। ओके, क्लियर। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हम जानते हैं कि सम ऑफ टू एंगल्स, ओके, तो लेट स्मॉलर एंड ग्रेटर अलग अलग मान लें, इक्वेशन बना लेंगे इसके अकॉर्डिंग, ओके, एंड सॉल्व कर देंगे। तो लेट कौन डिपेंड है, लेट स्मॉलर मान लो, लेट स्मॉल, वैसे तो एक ही अलग अलग मान लेंगे, लेट स्मॉलर एंगल
let smaller angle be smaller y degree and larger अलग अलग मान ले दोनों को, एंड लार्जर बी x डिग्री। ओके बेटा, इनमें रिलेशन क्या है, x बड़ा है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके बेटा, क्लियर दैट कि x में से बड़े में से छोटा माइनस करें, y माइनस करें तो वो कितना आएगा 18, क्योंकि वो 18 बड़ा है। कितना बड़ा है वो 18, तो उनका डिफरेंस 18 बनेगा। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इक्वेशन 1। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, हम जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल कैसे होते हैं कि सम ऑफ बोथ इज 180 डिग्री, देन बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये इक्वेशन नंबर है, ये डिग्री में है, ठीक है, डन। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। तो इनको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करें, एलिमिनेशन मेथड से कर दे, इजी है। ऐड करें दोनों को, एडिंग बोथ, ठीक है बेटा, डायरेक्ट एडिंग बोथ, ठीक है बेटा। तो व्हाट विल कम, देखो ऐड करने से माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो x प्लस एक्स 2x, डायरेक्ट आई एम राइटिंग इज इक्वल टू, ऐड किया तो 180 प्लस 18 तो 198 डिग्री। ओके बेटा, क्लियर दिस। देन x इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2, तो 2 9 जा 18 एंड 2 9 जा 18, तो 99 डिग्री आ गया आपका x। तो x था लार्जर, तो लार्जर आ गया आपका। तो आप पुटिंग दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन। ओके बेटा, पुटिंग x इक्वल टू 99 degree in equation, any one equation you can put in equation 1 or in equation 2. तो I am putting in 1, तो y will go that side, तो y equal to this implies, डायरेक्ट I am writing, लिख दिया मैंने ये, ठीक है। तो पुट किया यहाँ पर, तो y उधर गया, 18 इधर आया, तो y इज इक्वल टू आएगा बेटा x माइनस 18, ओके। तो इसमें से 80 x की वैल्यू पुट कर दी 99, सो दिस इम्प्लाइज 99 माइनस 18, ये कितना आया बेटा, ये आ गया आपका, ये डिग्री में है सब, ठीक है बेटा, डिग्री। देन नाउ 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 1 8, सो दिस इज 81 डिग्री। ओके, तो दिस इज y, तो बोथ एंगल आ गए आपके। ओके, y डिग्री x डिग्री, तो दिस इम्प्लाइज आंसर बोथ एंगल्स, फाइंड दैम। ओके, डन। तो वन हो गया 99 डिग्री एंड अदर एंगल हो गया 81 डिग्री, आंसर, ठीक है। इनको ऐड करके चेक कर सकते हैं, 9 प्लस 1 10, कैरी 1, 10 प्लस 8 18, तो 180 सम आ गया। तो देन एंड डिफरेंस भी देख सकते हैं। ओके, तो आंसर, तो लाइक दिस वी कैन डू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू डू, है ना। क्वेश्चन 3 इज दैट कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k so that the pair of linear equations 2kx minus 3y plus k minus 1 equal to 0, and second equation k plus 1 into x minus 9y plus 2 equal to 0 has no solution. Means for the no solution we have to calculate the value of k.
तो नो सॉल्यूशन कंडीशन वी हैव टू यूज हेयर. व्हाट इज द कंडीशन फॉर द नो सॉल्यूशन? A1 upon A2 equal to B1 upon B2 not equal to C1 upon C2. This condition you know. So apply this condition. Okay. So now solution A1 upon A2 equal B1 upon B2, because here no solution saying not equal to C1 upon C2. This condition we have to apply. Okay. So now we have we can say for no solution. We know this for no solution. This condition must be verified. We know. So A1 upon A2 here 2k upon k plus 1. 2k upon k plus 1. A1 upon A2. ठीक है बेटा. B1 upon B2 minus 3 upon minus 9. तो minus 3 upon minus 9. ओके बेटा. माइनस माइनस कैंसिल एंड नॉट इक्वल C1 इज k minus 1. k minus 1 C1 upon C2 is 2. Okay, this. तो सिंप्लीफाई दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. तो यहाँ पहला इक्वल है फर्स्ट, तो इसको चेक करें. तो 3 3 जा 9, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 2 जा 6k. ठीक है बेटा. इज इक्वल टू k प्लस 1. चेक हेयर. देन फाइंड k. तो 6k माइनस 1k 5k. सिंप्लीफाई इज इक्वल टू 1. देन k इक्वल टू 1 upon 5. One value k equal to 1 upon 5. Okay. And here what will come from the third? If we compare this, okay, this not equal to this, then 1 upon 3 not equal to k minus 1 upon 2. ठीक है बेटा. k वैल्यू दिस सॉर्ट. अब तो यहाँ से क्या रिजल्ट बनता है? 2 not equal to 3k minus 3. Okay. Then 3k not equal to 5. 3 इधर प्लस में आ गया, तो k not equal to 5 upon 3. Okay. Check this. तो from this k should not be 5 upon 3 except 5 upon 3 all possible, and यहाँ k की वैल्यू एग्जैक्ट 1 upon 5. सो k इक्वल टू 1 upon 5 आंसर. तो ये हम ध्यान दें कि इन दोनों में ये कहा ये 5/3 नहीं है, जब बाकी सब हो सकता है. k इज नॉट 5/3 एक्सेप्ट 5/3. ऑल k वैल्यू आर पॉसिबल, एंड हेयर इन दिस additional k is final 1 upon 5. so means accept 5/3 all, and here fix हो गया. तो answer is 1 upon 5. so like this question answer you will write this answer. Okay. be careful like this question. ठीक है. next question we have to do. हाँ जी. question number next 4. question next 4 is the sum of the digits of 2-digit number. Sum of the digits of 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. अगर order उनके रिवर्स कर दें तो वो नंबर बनता है वो ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स करें तो और उसका ट्वाइस करें तो इक्वल होते हैं ट्वाइस ऑफ द ऑब्टेन. तो नाउ यू विल सी लेट सॉल्यूशन. तो हाउ यू विल डू? लेट कर लेंगे वंस, अलग अलग नंबर लेट डिजिट लेट करेंगे. लेट वंस प्लेस डिजिट, लेट वंस प्लेस डिजिट. ओके बेटा.
वंस प्लेस डिजिट, प्लेस है ना उनके, ऑर्डर चेंज कर रहा है वो, तभी नंबर बनेगा, ठीक है। डिजिट, वंस प्लेस डिजिट एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट बेटा, ठीक है, टेंस प्लेस डिजिट लेट वाई, सो दिस इम्प्लाइज नंबर। सो नंबर क्या बन गया बेटा, बताइए। नंबर व्हाट विल बी, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस डिजिट है तो नंबर प्लेस वैल्यू सिस्टम, वंस प्लेस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाई बाई 10, देन नंबर विल कम। तो मीन्स वंस प्लेस डिजिट x इंटू 1 x एंड प्लस टेंस प्लेस डिजिट मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10y, दिस इज योर नंबर, ठीक है बेटा, ये ओरिजिनल नंबर। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाउ कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सम ऑफ द डिजिट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई कितना है 9। ओके बेटा, दिस इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन, 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर, 9 मल्टीप्लाई बाई ओरिजिनल नंबर x प्लस 10y, x प्लस 10y, ठीक है बेटा। 9 टाइम्स द नंबर दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर बनाया इसका 9 टाइम्स दिस नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर obtained by reversing the order of the digit, रिवर्स यानी x वंस प्लेस पर y हो गया और टेंस प्लेस पर x, तो क्या बनेगा वो नंबर, अब 10x हो जाएगा बिकॉज वो जो है टेंस प्लेस पर जाएगा और प्लस y वंस प्लेस पर आएगा तो y इंटू 1y, ये रिवर्सिंग करके नंबर बना इसका ट्वाइस देन इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन we have made this simplify, तो 9x plus 10y equal to 2 into 10 20x plus 2y, तो 20x will come this side, तो 9x minus 20y, और ये इधर ले लो, 10 to जा 20x, 20x minus 9x, तो 20x minus 9x 11x। ओके बेटा, 20 minus 9 कितना बना 11, तो देन 11x। ओके, एंड दिस 90y इधर आया तो 20y माइनस 90y, टू वाई एंड इधर 90y, तो 2y माइनस 90y, तो माइनस का 88। ओके बेटा, सिंप्लीफाइड दिस एंड इक्वल टू व्हाट इज, यू सी ये भी इधर आ गया, ये भी कोई नंबर नहीं बना तो इक्वल टू 0। ओके बेटा, देन सिंप्लीफाई दीज बोथ इक्वेशन एंड और वी कैन से, और सिंप्लेक्स कर सकते हैं, 11 से डिवाइड हो रहा तो x माइनस 11 8 जाए 88, देन x माइनस 8y इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। बोथ इक्वेशन वी हैव टू सॉल्व। इक्वेशन 1 इज x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y, तो x हेयर सब्ट्रैक्ट कर दें, इसको इसके नीचे लिख लें, x प्लस वाई ओके इज इक्वल टू 9, ठीक है बेटा, इक्वेशन 1। तो कैसे क्या, सब सिंप्लीफाई सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट, ओके बेटा, बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो x माइनस एक्स कैंसिल बेटा, देन माइनस 8y एंड माइनस 1y माइनस 9y एंड देन 0 माइनस 9 इक्वल टू माइनस 9। ओके बेटा, देन माइनस कैंसिल, देन y इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 9 1, तो y आपका 1 बन गया, तो पुटिंग हेयर इन 1, सो फ्रॉम
फ्रॉम 1 व्हाट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y पुट किया तो x प्लस 1 इक्वल टू 9, देन x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, x इज 8. ओके, तो x 8 y 9, so number this, so required number, okay, what is that? x plus 10y, तो x plus 10y. ओके बेटा, देन पुट वैल्यू x इज 8 प्लस 10 इंटू y इज 1, 10 इंटू 1, देन दिस इम्प्लाइज 8 प्लस 10 18, तो दिस नंबर इज 18. रिवर्स कर दो तो 81 बना और 9 से मल्टीप्लाई करो और उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, देन इक्वल हो जाएंगे. ओके, 81 2 जा, रिवर्स करके 2 से मल्टीप्लाई 81 2 जा और इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, 18 18 9 जा. ओके, नोट 18 9 जा 162. ठीक है, 18 9 जा 162. 162 चेकिंग बता रहा हूँ मैं बेटा. 9 टाइम 162 हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन में ये 2 टाइम्स करो. किसको 2 टाइम्स करो? रिवर्स करके. रिवर्स 81 2 जा 81 2 जा 162. चेक हो गया तो बोथ साइड करेक्ट, सो चेक कर सकते हैं. सो आंसर योर 18. तो दिस नंबर इज 18. ओके, लाइक दिस यू कैन डू. Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to the maximum contact. Okay, thank you.